بلیٹن میں خوش آمدید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دوحہ میں ہونے والی ایران امریکہ مذاکرات کی خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات کے لیے درخواست خود ایران نے کی ہے۔ اس سے پہلے میڈیا پر خبریں گردش میں تھی کہ ایران اور امریکی حکام پاکستان اور قطر کی ثالثی میں منگل کو دوحہ میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات کا محور آبِ ہرمز کے معاملات پر بات کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں گیس کی قیمتوں میں کمی کا ذکر کیا۔ کہا گیس کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، خام تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں۔ خام تیل کی موجودہ قیمت ایران جنگ سے پہلے کی قیمت سے بھی کم سطح پر ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق آئندہ چند روز میں کسی بھی تکنیکی اجلاس کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواں ہفتے امریکہ کے ساتھ ورکنگ گروپس کے کسی تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ قطر کے ساتھ مشاورت معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم وہ بعض میڈیا اداروں کی جانب سے دوحہ میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کے انعقاد کی خبروں کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ نامزد ورکنگ گروپس کے تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور اسی وقت ہوگا جب تمام ضروری شرائط پوری ہو جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی کل قطر میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے اس خبر میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شریک ہوں گے۔ کیرولین لیوٹ نے مزید کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آبِ ہرمز کے معاملات پر ہونے والی بات چیت کی سائیڈ لائنز پر ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات بھی ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ قطر میں منجمد ایران کے 12 ارب ڈالرز کے اثاثوں میں سے 6 ارب ڈالرز جلد جاری کیے جائیں گے، باقی پیسے بھی واپس ہوں گے۔ ایرانی صدر نے تصدیق کی کہ امن معاہدے کے تحت ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت کو ایرانی عوام کی عظیم فتح قرار دیا۔ قم کے دورے پر موجود صدر پزشکیان نے کہا کہ منجمد اثاثوں کا اجراء اور پابندیوں کے خاتمے کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے فریم ورک کا حصہ ہے۔ ایرانی صدر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں ہے اور عالمی برادری کو یقین دلاتا ہے کہ جوہری سرگرمیاں ملک کی ضروریات کے مطابق اور اعلان کردہ پالیسیوں کے دائرے میں رہیں گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ جب تک اسرائیل کی جانب سے زمینوں پر قبضے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ استنبول میں نیٹو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی حل سے طے کیا جا سکتا ہے۔ ترک صدر غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی جنگ کو ہدف تنقید بناتے رہے ہیں۔ 2024 میں بھی اس وقت ترکی اور اسرائیل کے درمیان بیان بازی کی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی، جب رجب طیب ایردوان نے اشارہ دیا تھا کہ ان کا ملک غزہ میں خون ریزی رکوانے کے لیے فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج ایران سے ہوئے معاہدے پر امریکی اراکین کانگریس کو بریفنگ دیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا جب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ طور پر اراکین کانگریس کو ایران امریکہ معاہدے سے آگاہ کیا جائے گا۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ٹریفک میں واضح کمی آئی ہے۔ یہ صورتحال تجارتی جہازوں پر حملے اور ایران امریکہ حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ ہفتے کے روز 29 جہازوں نے جبکہ اتوار کو صرف 12 جہازوں نے آبِ ہرمز کو عبور کیا۔ یہ تعداد پچھلے ہفتے سے بہت کم ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی ایران امریکہ ڈیل کے بعد پچھلے ہفتے بدھ کے روز 70 جہازوں نے آبِ ہرمز عبور کی تھی۔ بیروت میں لبنانی آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل اور لبنانی صدر جوزف اون کی امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطحی کے وفد بھی ملاقات میں شریک تھا۔ فریقین نے جنگ زدہ لبنان کی تازہ صورتحال پر بات کی اور ایک دوسرے کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل ہیکل نے لبنان کی حفاظت اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ملاقات اس سیف امریکی معاہدے کے پس منظر میں انتہائی اہم ہے، جس میں امریکہ، لبنان اور اسرائیل نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ صرف اس وقت تک جنوبی لبنان میں اپنی فوج رکھ سکے گا جب تک وہ سمجھے گا کہ اسرائیل کے وجود اور اسرائیلی شہریوں کو خطرہ برقرار ہے۔ پیمرا نے 10 محرم الحرام کو پیش خصوصی پروگرام سفر عشق میں مذہبی تصویر کشی پر جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیمرا نے نشر مواد ماہ محرم کے تقدس کی پاسداری سے متعلق اپنے جاری کردہ ہدایت نامے سے متضاد قرار دیا اور کہا کہ ظاہری طور پر اس مواد سے ناظرین کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ اور تمام ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر 15 روز تک جیو نیوز کی نشریات معطل رہیں گی۔ معاملہ کونسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ جیو نیوز نے پہلے ہی غلطی تسلیم کر کے معذرت نشر کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ مقدس ہستیوں کو ہم سب انتہائی عزت و احترام کے درجے پر دیکھتے ہیں۔
इसी लिए इन हस्तियों की तस्वीर कशी या तस्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए। पैमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने पर रद्दअमल में अता तारड़ ने कहा कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर देखना है कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ऐसा हुआ और आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मज़हब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरका के हाथ से भी निकल जाते हैं, इसलिए हम सब पे एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पैमरा ने बर वक्त नोटिस जारी किया जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और इन मामलात के ऊपर उलमाए दीन को भी फॉलो करना है। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज इन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और इसका मकसद किसी वसी तर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, इसकी तायीद करना या इसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही इसकी इशाअत किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अक़ायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या इदाराजाती नज़रियात की अक्कासी नहीं करती। मुतल्लका मवाद को फ़ौरी तौर पर हटा दिया गया है और इदारे ने फ़ौरी तौर पर इसमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अवामी रद्दअमल से पहले वजाहतें और माजरत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ़ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मायरात को बरकरार रखने के अपने आज़म का इआदा करते हैं। गुज़श्ता 10 रोज़ से जियो की वेबसाइट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुसलसल हैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई मनपसंद मवाद डाला जा सके। इस संगीन मामले पर जियो की इंतज़ामी ने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया है ताकि इस कोशिश को रोका जा सके और किसी किस्म का कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड ना हो सके और इसका फौरी सद्जवाब हो सके। इस मामले पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। रावलपिंडी के इलाके खौटा में अदालत पेशी के बाद जेल मुंतकिल किए जाने वाले कैदियों की वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इलाके का मुहासरा करके 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तहम 10 अब भी मफरूर हैं। तफसील के मुताबिक ये कैदी इस वक्त फरार हुए जब कैदियों की वैन को सहाला चकियाँ पोस्ट के करीब मामूल की चेकिंग के लिए रोका गया था। दरवाज़ा खुलते ही ये कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। पुलिस एहलकारों को माजूर करके 14 कैदी फरार हो गए। आज़ाद कश्मीर के माली साल 2026-27 के लिए 286 अरब रुपए का बजट पेश करके मंजूर कर लिया गया है। टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। सड़कों की तामीर मुरम्मत, जंगलात में आग लगने वाली रोकथाम, नई सड़कें, पुल और हुनरमंदों के लिए बिलासूद कर्ज भी बजट का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट तकरीर के दौरान बताया कि आइंदा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट का मजमूई हजम 286 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें 36 अरब रुपए तरक्याती जबकि 250 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट के मुताबिक टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है कि नए माली साल के दौरान 394 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत, 330 किलोमीटर राब्ता सड़कों की तामीर, 376 मीटर तवील RCC पुल और 97 मीटर तवील बेली ब्रिज तामीर किए जाएंगे, जबकि हर इंतखाबी हल्के में 10 किलोमीटर राब्ता सड़कें भी बनाई जाएंगी। बिजली के शोबे में 118 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने का मंसूबा भी बजट का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुनरमंद अफराद को बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे ताकि रोज़गार के मौक़े में इजाफा हो, जबकि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जंगलात में आग रोकने के लिए फायर ब्रेक लाइन, आतिशगीर मवाद की सफाई, आग बुझाने के आलात और खुसूसी लिबास भी फराहम किए जाएंगे। बजट में अस्पतालों की तोसी और तामीर के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। बद से बदनाम बहुत बुरा होता है। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर एक्शन आवाम दोस्त होना चाहिए। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेक्विजिशन रूल्स के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास में खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पीरा का अदालती महाज पर 99% कन्वेंशन रेट कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पीरा शानदार काम कर रही है, मगर पब्लिक प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन में कमी को दूर किया जाए। कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर खत्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि दीगर महकमों के 351
मुलाजमीन को महकमाना नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर वापस महकमों में भेज दिया गया। पीरा फोर्स अब 62,000 से ज़ायद डिजिटल रिक्विजिशन पर कार्रवाइयां अमल में ला चुकी है। सूबे भर में 15,27,028 इंस्पेक्शंस मुकम्मल की गयी। 3,500 दुकानें सील, 21,000 कनाल से जायद अराजी वागुजार कराई गई। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे और तजावुजात पर 1,700 अफराद को, तजावुजात पर 1,700 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अदालतों में 136 रिट पिटिशंस में से 99% केसेस का पीरा के हक में फैसला हुआ। महकमाना एहतसाब के तहत पीरा में 700 सजाएं, गफलत पर 20 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया। एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयों से पहले हर तरह से नोटिस देना, खबरदार करना लाजमी होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान जो सोशल मीडिया या एक निजी चैनल पर हुआ, इस पर कानून के मुताबिक रास्ता अपनाया जा रहा है। रावलपिंडी में उलमा मशाइख सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी बात पहले एक फोरम पर सुनी गई है। जियो में हज़ारों अफराद काम कर रहे हैं, सारे मुसलमान हैं। गलती हुई होगी, ये गलती दानिस्ता हुई या गैर दानिस्ता, इसकी तहकीकात जियो इंतज़ामिया का काम है। जियो की इंतज़ामिया ने कहा कि वो इसकी तहकीकात करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी ख़तरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा मौत रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 325 से ज़्यादा मौत हुई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपी ममालिक में सियाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासर हैं। हीट वेव मज़ीद एक हफ़्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की ज़द में हैं। वेनेज़ुएला में हलाकत खेज़ ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स को ज़िंदा निकाल लिया गया। 5 रोज़ बाद मलबे तले दबे अफराद के ज़िंदा बच जाने की उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगी हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़्यादा की हंगामी इमदाद जारी की है। चीन ने $14 मिलियन से ज़्यादा मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान किया है। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1450 अफराद हलाक, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा ज़ाहिर किया है। जर्मनी के शुमाली कस्बे में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग के मुहर्रकात का भी इल्म नहीं हो सका। तहकीकात की जा रही हैं।